आप लेते हो ये, when you take this bundle, when you take a new bundle by sacrificing the less and loss of another in such a manner, ऐसे करते हो कि आपको उसके जैसा ही एक बंडल मिले. It means you are going to get the same level of satisfaction. Now, why it is downward sloping? Sloping downward क्यों है? उसका रीजन इतना ही है कि x एक्सिस लेने के लिए one, if you want to buy one more x, we need to sacrifice less and less of y. ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अलीम बेटा आ रहा है समझ में, या कुछ और तरीके समझाऊं? नहीं समझ में आ रहा तो another method. यस बेटा. So please explain the another method. Another method. Fine. For an example, let me give an example of a chocolate, like Dairy Milk and 5 Star, as in our previous example. Alim, unmute yourself and pay attention to that. For an example, if you want more and more, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 Star चाहिए, right? So सबसे पहले आपके पास let's say 20 Dairy Milk है और एक भी 5 Star नहीं है. You don't have a 5 Star. So my question to you is, Alim, whether you are sacrificing one Dairy Milk for a 5 Star, two Dairy Milk for 5 Star, you will sacrifice more Dairy Milk for a 5 Star or less Dairy Milk for a 5 Star in the beginning. Yes, Alim. आपके पास 5 Star है ही नहीं, आपके पास Dairy Milk ही है. तो अगर आपको 5 Star चाहिए, what you are going to do? Will you sacrifice more of the Dairy Milk or less of the Dairy Milk? More of a dairy milk. Why? Because it's rare, right? 5 Star is rare. You don't have a 5 Star, and that's why you value more of the 5 Star, right? Yes, sir. Now, after having 4-5 5 Star, आपने क्या किया? Dairy Milk का बलिदान दिया, and definitely you have every day addition to 5 Star. एक लेने के लिए पहले 5 Dairy Milk का बलिदान दिया, और फिर दूसरी 5 Star लेने के लिए आपने थोड़ा कम दिया, यानी 4 Dairy Milk दी थी. तीसरी 5 Star लेने के लिए आपने और कम दी. Why? Because your relative worth of the 5 Star goes on decreasing. आपके लिए उसकी कीमत कम लगने लगी. क्यों? क्योंकि जैसे 5 Star आपके पास बढ़ने लगी, आपको क्या लगा कि नहीं, अभी तो 5 Star है, अभी मुझे कुछ 5 Dairy Milk देने का बलिदान नहीं करना है मुझे. I want few of the Dairy Milk to be sacrificed, right? Yes, sir. So as you start consuming more and more, as you start substituting more and more Dairy Milk for a 5 Star, your relative worth for 5 Star goes on decreasing. ये decrease होने की वजह से ही, I'm repeating it, ये relative worth का decrease होने की वजह से ही ये पूरा कर्व downward sloping हो रहा है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट. बट क्योंकि ये इनडिफरेंस कर्व है, हम बंडल ऐसे चूज कर रहे हैं कि हमारे लिए, हम बंडल ऐसे चूज कर रहे हैं कि हमारे लिए हर एक बंडल पहले जैसा ही हो. यानी आपके लिए 5 Star की कोई कीमत नहीं है अगर आपके पास 20, सॉरी, आपके लिए डेयरी मिल्क की कोई कीमत नहीं है अगर आपके पास 20 डेयरी मिल्क है, तो आपके पास 5 Star की कीमत बहुत है अगर आपके पास 0 5 Star है. नेक्स्ट, आपने 5 डेयरी मिल्क को कुर्बान कर दिया एक 5 Star लेने के लिए. It means you show that you are more having a worth. But remember, आपको 20 डेयरी मिल्क और 0 5 Star और 15 डेयरी मिल्क और 1 5 Star दोनों का वर्थ आपके लिए एक ही है. You are indifferent between them, right? This is how human tendency, because जो rare होता है वो लेने के लिए आप ज्यादा कमोडिटी देने के रेडी हो जो आपके पास नहीं है. अगर आप लेट्स से मिल्कमैन हो और आपको वुड चाहिए, लकड़ा चाहिए, तो आप ज्यादा मिल्क देने के रेडी हो लकड़े के लिए. पर अगर आपके पास लकड़ा भी है तो आप ज्यादा मिल्क नहीं दोगे लकड़े के लिए. Now, once you have 1 5 Star, you are now sacrificing less.
for second 5-star. You're not sacrificing 5 dairy milk, now you're sacrificing 4 dairy milk. But again, the level of satisfaction remains the same, right? ये सबका ये जो बंडल आप में बना रहे हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम ही है, क्योंकि आपके पास डेयरी मिल्क ऑलरेडी है और 5 स्टार आपके लिए रेयर चीज है. धीरे धीरे ऐसा टाइम भी आ जाएगा आपके पास जब आप एक ही डेयरी मिल्क सेक्रीफाइस करके एक 5 स्टार लोगे. क्यों? क्योंकि आपके पास 5 स्टार बढ़ जाएगी. अगर आपके पास 5 स्टार बढ़ जाएगी, then you are not going to sacrifice more of it. And because of these reasons, this indifference curve is sloping to the right. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Let's move to the next topic. Why it is convex to the origin? Because of DMRS. अगर आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, you know, PPC curve. Okay, what is the shape of PPC curve? Can anyone tell me? किसी को याद है? कैसा था PPC curve? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. How is the PPC curve? Yes, Krishna. Sir, linear. No, it was not linear. Very long. पढ़ो. It was a concave to the origin. कैसा था? Concave to the origin. मेरे वीडियोस को चेक करो. जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं पीछे, राइट, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है उनके लिए ही मैंने वीडियो रखा है. I'm giving a special treatment in the day boarding to all the students. For all the lectures, there's a video. So look at the video, watch the video, and learn out of it. Now it is concave to the origin. PPC का concave क्यों था? Reason पता है? Because you know MOC was increasing. Marginal opportunity cost was increasing. This is why PPC was concave to the origin. मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बताया था कि कोई भी चीज कॉन्केव होने का रीजन इतना ही है कि उसकी मार्जिनल कैपेसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है. अगर मार्जिनल कैपेसिटी बढ़ रही हो तो कॉन्केव होता है. मार्जिनल कैपेसिटी कांस्टेंट हो तो लीनियर होता है. मार्जिनल कैपेसिटी कम हो रही हो, घट रही हो तो कॉन्वेक्स होता है. इन पीपीसी कर्व the marginal capacity was increasing. In other words, MOC was increasing. But in here, in indifference curve, we have marginal capacity में क्या है हमारे पास? DMRS, diminishing marginal rate of substitution. और ये हो क्या रहा है इसका? Is it increasing? No, it is decreasing. And that is why the curve is convex to the origin. Right? उसका convex होने का reason इतना ही है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होते जा रहा है. राइट, सो लेट्स लुक एट थियरी. व्हाट द थियरी सेज. लेट मी रब ऑल दिस. An indifference curve is convex to the origin because of the diminishing marginal rate of substitution, DMRS. The slope of an indifference curve is called marginal rate of substitution of x for y. Of x for y. Symbolically, कैसे डिनोट करते हैं? MRS of x for y. वो x का है y के लिए. यानी y बलिदान देके आप x लेने की कोशिश कर रहे हो, कहने का मतलब. It is defined as the amount of y that the consumer is willing to substitute for additional rate of x. Marginal rate of substitution का मतलब ही ये है कि आप कितना y कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, यानी सेक्रीफाइस करना चाहता है. किसके लिए? एक्स के लिए. एंड द स्लोप मेजर्स द सब्स्टिट्यूशन रेशियो ऑफ टू गुड्स. ये जो दिख रहा है आपको स्लोप, यही मेजर करता है दो गुड्स के सब्स्टिट्यूशन के रेशियो को. अगर ये कम होगा तो कॉन्वेक्स होगा, याद रखिएगा. ये बढ़ रहा होगा तो कॉन्केव होगा, क्योंकि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और बढ़ेगा तो ग्राफ का शेप ही ऊपर से जाएगा. Now the slope of an indifference curve is defined only for the movement along the curve. कर्व जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से मूवमेंट बदलता जाएगा उसका.
क्योंकि अगर आप पहले देखोगे, स्टार्टिंग में देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, तो आपको एक एक्स लेने के लिए बहुत ज्यादा वाई का बलिदान देना पड़ रहा है। देन इफ यू सी, आपको एक एक्स लेने के लिए वाई का कम बलिदान देना पड़ रहा है, बाद में और कम, और आगे एक ऐसा टाइम आएगा कि एक एक्स लेने के लिए आपको वाई का बहुत ही कम बलिदान देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाई द ग्राफ इज सच। द फॉर्मूला ऑफ स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो चेंज इन वाई पर चेंज इन एक्स ही है, और उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Now, MRS of X for Y वो क्या है? एक्चुअली वो रेट है जिससे कंज्यूमर Y का बलिदान दे रहा है फॉर X। समझ में आ रहा है अलीम, आईनी? Yes, sir. Yes, sir. Right? So the more you sacrifice Y for every additional unit of X, right? It means MRS will increase. But यहाँ पे क्या हो रहा है? We are sacrificing less and less of Y for every additional unit of X. Diminishing margin of substitution, इसी को बोलते हैं DMRS. Now MRS of X for Y must be diminishing as consumer moves along the curve to the right. जैसे ही consumer right curve की तरफ आगे बढ़ेगा, right, MRS diminish होता जाएगा, कम होता जाएगा। Are you getting it? ऐसा क्यों हो रहा है? Let's understand that also. क्योंकि आपको उसका रिलेटिव सिग्निफिकेंस कम लग रहा है। अभी आप x जैसे आपके पास ज्यादा आ गया, तो आपके पास x का सिग्निफिकेंस कम लग रहा है। दिस इज बिकॉज एज अ कंज्यूमर हैज मोर ऑफ x, अभी x बढ़ता गया, राइट, इट्स सब्जेक्टिव वर्थ, उसका जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है टू हिम डिक्लाइंस, वो कम हो गया। क्योंकि आपके पास पहले 5 स्टार थी नहीं, इसलिए आप उसको ज्यादा वैल्यू कर रहे थे। अभी 5 स्टार आ गई आपके पास, तो आपको वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? So he is willing to give up now less and less of y for additional unit of x. Therefore, MRS of x for y is always diminishing and the slope is also diminishing. It implies, ये बताता है आपको कि indifference curve convex ही होगा. It's convex to the origin only. Preferences of this kind are also called convex preferences. ऐसे preferences को हम convex preference भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Aini? Yes, sir. Okay. Now convex preferences mean, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ही गुड एक्स ज्यादा लोगे, कंज्यूम करोगे या बाय करोगे, राइट, आप कम से कम वाई गुड देना चाहोगे फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स, यानी वाई का बलिदान अभी कम दोगे। पहले स्टार्टिंग में बड़े दे दिया, क्यों? क्योंकि आपके पास था ही नहीं, रेयर था, और अभी नहीं दोगे। दिस इज व्हाई इट इज कॉन्वेक्स, और वो गिरता जाएगा, राइट? पहले आप 5x बलिदान दोगे फॉर 1y, और सॉरी 5y बलिदान दोगे फॉर 1x, माय मिस्टेक। यहाँ पे y सेक्रीफाइसिंग है और x गेनिंग है सिस्टम में। सो योर रेशियो भी 5y इज टू 1x, देन होगा 4y इज टू 1x, और मैं होगा 3y is to 1x, and for every x now we are sacrificing lesser and lesser of y. This is why it is convex to the origin. Point number 3, third property. Two curves of indifference curve will never intersect each other. Question: will they intersect each other? Now this thing, this property of the indifference curve we can prove, and we can prove by the proof of contradiction. You know, contradiction, आप पढ़े हो proof of contradiction मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में, याद आ रहा है? If something is not true, something is false. आप ये प्रूव कर दो कि ट्रू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि ये फॉल्स है। वैसी बात है, राइट? समझते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे?
हम ये मान लेते हैं कि टू डिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? और मान लो कि चलो इंटरसेक्ट हो गए, अभी इसको आप प्रूव कर दो कि इंटरसेक्ट हो गया वो गलत है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो इंटरसेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. हम उल्टा जा रहे हैं प्रूफ करने के लिए. तो ये मान लेते हैं अभी कि लेट्स से दे इंटरसेक्ट ईच अदर. मान लो कि इंटरसेक्ट हो गया, राइट? देन वी गेट कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स. नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि अगर ये बी पॉइंट और ए पॉइंट अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, तो क्या आप मानते हो कि ये एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा उनका? मुझे ये बताइए. दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, ए पॉइंट भी और बी पॉइंट भी. तो मुझे ये बताइए क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक ही रहेगा दोनों का? यस? No, sir. Why? Because we know that indifference curve पे जितने भी बंडल्स आप देखोगे, the level of satisfaction remain unchanged. यानी यहाँ पे मैं तीसरा बंडल भी लगा दूं या चौथा बंडल भी लगा दूं, the indifference curve is not going to change. It means throughout the curve मैं देखूंगा indifference curve पे satisfaction एक ही होगा. हमको ये भी पता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस कर्व जैसे हाई होता है तो सेटिस्फेक्शन भी हाई होता है. तो एक हिसाब से अगर हम देखने जाए तो सी का सेटिस्फेक्शन हाई होगा ए से, हाँ क्या ना? यस आई नहीं? Sir, not able to understand. बेटा हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. सी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है आई नहीं? क्या टू कर्व्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बराबर है आई नहीं? Yes, sir. मान लो कि हम अभी ये मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर दिया, राइट? तो इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले, उसके बाद आपके थॉट्स लगाइएगा. हमको ये पता है आई नहीं कि B and A if they are lying on the same indifference curve, the level of satisfaction is same. अगर दोनों एक ही Yes. indifference है तो सेम है. तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो B and C एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, Yes, sir. A and B भी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है. Yes. तो मैं ये बोल सकता हूँ A is equal to B is equal to C. Yes, sir. Yes, sir. But now this is something different. We also know one more thing. Okay, the higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Yes or no? Yes, sir. By that logic, satisfaction of C is more than satisfaction of A. But we have proved that A is equal to C, and we have also proved that C is more than A. That cannot happen. These two terms contradict each other. It means उसका मतलब ये हो जाता है कि two indifference curve cannot intersect each other. We have contradictory. If we get a contradictory proofs, अगर हमको विरोधाभास प्रूफ मिलते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ मिलते हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो इन फिगर इफ यू लुक, समझ में आ रहा है आई नहीं? Yes, sir. In the figure, if you look, A and B lie on the same plane, right? Same indifference curve, A and B. So the consumer must be indifferent between them, and same level of satisfaction. Similarly, the same can be said for the B and C on I2. दोनों I2 पे lie कर रहे हैं, तो उनका level of satisfaction भी same है, right? तो A and B का same है और B and C का same है. By this assumption of transitivity, consumer must be indifferent between A and C also. So because B is equal to C and A is equal to B, then definitely A is equal to B is equal to C, right? But if you look at carefully, the I2 plane at C point is higher than A point.
so C is better than A. So this itself contradict each other. ये दोनों ही चीज अपने आप में contradict कर रहे हैं. अगर ये contradict कर रहे हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि the two curves do not intersect each other. वो कभी intersect करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे तो contradictory proof आएंगे. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Point number 4. Higher the indifference curve, higher represent a higher level of satisfaction. जितना indifference का ऊपर उतना level of satisfaction बढ़ जाता है, right? A higher indifference curve shows a high level of satisfaction. It is because of the assumption that the preferences are monotonic. हमको एक गुड ज्यादा चाहिए पर दूसरा कम भी नहीं चाहिए, right? उसको समझाने के लिए now what I'm going to do is I'm going to take my whiteboard and I'm just drawing something in here on this whiteboard. Let's say I take one indifference curve like this. बराबर है? और इस पे कुछ amount of x है. This is let's say good x. And this is say good y. So let's say you take 2 good x and 4 good y. बराबर? Your bundle is 2, 4. Now, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन हाई ही होगा? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? What I'm going to do is I'll keep the bundle of y constant. मैं y का बंडल जो है ना वो 4 ही रख रहा हूँ ये इंडिफरेंस कर्व पे. तो मुझे क्या मिलेगा पता है? I get more of x. I get 4 of x. So which is better than the first bundle? जो फर्स्ट बंडल से बेटर है ना. So any point above indifference curve will give you the high level of satisfaction. So I1 से ऊपर वाला जो भी पॉइंट मैंने देखा तो सेटिस्फेक्शन मुझे हाई देगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Means this is proved that higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. क्योंकि otherwise ये possible नहीं है. So indifference कर्व की 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको. प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट? आपको रट्टा मारो, समझ के करना, समझ के करो, बट मैं समझ के करवाऊंगा. नंबर 1 क्या है? इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? द ग्राफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और यही एक रीजन है की वजह से वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है इंडिफरेंस कर्व, राइट? तीसरा हमने देखा कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ऐसा क्यों? तो उन्होंने प्रूव किया. प्रूव कैसे किया? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. उन्होंने क्या किया? दो इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करके रख दिया, राइट? और इंटरसेक्शन पॉइंट को बोल दिया बी. एक पॉइंट दे दिया ए और दूसरा पॉइंट दे दिया सी. बाय रूल वी नो दैट if the points lying on the same indifference curve will give the same level of satisfaction, so we know that A is equal to B and B is equal to C. By that meaning of transitivity, अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब A is equal to C भी हो जाता है. Yes, sir. और हमने देखा कि ये थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी तरह से हमने अगर देखने जाइए इंडिफरेंस कर्व को ध्यान से, तो C ऊपर है, A नीचे है, तो उसका मतलब ये होता है C is more than A. A is equal to C and C is more than A दोनों पॉसिबल नहीं है एक ही रीत में. एक बार जो आप बोलते हो कि C A की जितना है, दूसरी बार जो हम बोलते हैं कि C is more than A, it cannot be possible. It means उसका मतलब ये हो जाता है कि two indifference curve can never intersect each other. This is how we have proved. And the fourth property says the higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. That also we have proved recently. समझ में आ रहा है? Yes. Okay. Next is what we call budget line. Now indifference curve आपको ये दिखाता था अभी तक the level of satisfaction, right? It only just shows the level of satisfaction. It doesn't shows what is your budget is. See, हमने utility approach जब हमने पढ़ा था, याद करो, we measure the utility. We can measure the utility. In here we cannot. So
कंज्यूमर को यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिफरेंस का उतना ध्यान रखना ही है जो आपको एक पार्ट बताता है, वन पार्ट ऑफ द स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी क्या है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी है, I1 पे कितनी है, I2 पे कितनी है, I3 पे। जैसे इंडिफरेंस का ऊपर जाता जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल भी ऊपर जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ टू गुड्स, बजट लाइन यही टू गुड्स का बजट दिखाता है कि कितने पैसे लगेंगे आपको इसको बाय करने के लिए, हाउ मच मनी यू विल रिक्वायर टू बाय दोस टू गुड्स, दैट इज शोन बाय द बजट लाइन। एंड दिस कांसेप्ट इज एंटायर डिफरेंट एज इंडिफरेंस कर्व। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, ये समझ लिया। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो बजट लाइन पढ़ने वाले हैं। मैं आज लोड नहीं कर रहा हूँ, कल से करूंगा, और बजट लाइन पढ़ने वाले हैं। बाद में क्या करेंगे, एक बार जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, एक बार जो आपका बजट है, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ चिपका देंगे, और ये देखेंगे लास्ट में कि बजट में रह के क्या कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सकता है विद इन इट्स बजट। This is our purpose. Our purpose is consumer's equilibrium, and when a consumer will be equilibrium, when he gets maximizes satisfaction in a given budget. वही तो देखना चाहते हैं हम। तो अभी तक हमने one part of the story को clear किया है, that is satisfaction level of the consumer. Now tomorrow another part of the story will start, that is its budget with these two goods, and after this two we superimpose both. You get the process? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो सेटिस्फेक्शन लेवल इंडिफरेंस को वापस एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको डाउट है तो कल हम और अच्छे से क्लियरली करवाता हूँ मैं आपको। स्कूल में समझा रहा हूँ उसमें क्लियर हो रहा है आपको?